Hello, good morning everybody. Today we are going to discuss about the diffraction of light. Up to this position we have discussed about the different parts of the interference. इंटरफेरेंस के बहुत सारे पार्ट्स हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए. ओके, तो अभी हम लोगों को जो डिफ्रैक्शन का पार्ट है वो डिस्कस करना है. ठीक है, ओके. तो फॉर दैट वन फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट दिस वन वीडियो. एक वीडियो में आपको दिखाता हूँ. कैन यू एबल टू हियर द साउंड? आपको वीडियो का साउंड सुनाई देता है? प्लीज रिप्लाई. ओके, 1 मिनट. On the corners of an obstacle or aperture is called diffraction of a wave. The process of diffraction can be explained using Huygens principle. When the waves from the music player reach the opening, according to Huygens principle, every point on the wavefront will act as source of secondary wavelets. The waves coming from these sources will again propagate in all directions. Some of these waves reach your ears, making the music player audible. Now, the extent of bending depends upon the value of wavelength compared to the size of the opening. If the opening is much larger than the wavelength, then the bending will be almost unnoticeable. But if the opening is smaller than or almost equal to the wavelength of the wave, then the bending will be high. Now consider another situation where we have a light source instead of a music system. As we can see here, the light waves have illuminated only this part of the room. This means that the light waves did not bend to illuminate this region. This type of regions where a particular wave is unable to penetrate is called shadow region. Now the question is, why did the light waves bend so least and sound waves bend so high? The answer to this lies in the property of wave, which states that the extent of bending of any wave depends upon the value of its wavelength lambda compared to the size of the opening d. The bending of a wave or diffraction will be high only if the size of the opening d is either comparable to lambda or is smaller than lambda. Since the audible sound waves have large wave, ओके, तो अभी आपको एक वीडियो दिखाया था. ठीक है, उसमें क्या था? तो पहले साउंड वेव एक रूम में रखा है. ठीक है, या साउंड का सोर्स एक जगह पे रखा है, म्यूजिक प्लेयर रखा है और हम दूसरे रूम में है, तभी भी हमको साउंड सुनाई देता है बिकॉज द साउंड वेव्स बेंड्स. जो अभी आपको सामने जो दिख रहा है वैसे साउंड वेव्स बेंड होती है. ठीक है, नाउ अब इसके जगह पे ये साउंड वेव्स क्यों बेंड होती है? बिकॉज ऑफ द वेवलेंथ. ठीक है, तो लाइट का वेव और वेवलेंथ यदि ये सेम होता तो लाइट वेव भी बेंड होता. But as we are well known that the wavelength of the light is very small as compared to the sound waves are there. That's why light का जो diffraction था या light कैसे था? सीधा गया था. ओके, तो लाइट हमको यहाँ से ये यहाँ से सीधा आया और इस सोर्स पे हम लोगों को दिखाई देता था लाइट. ओके, लाइट इज नॉट अ बेंडिंग बिकॉज ये जो अपर्चर है इसका साइज ज्यादा था. इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब क्या हुआ देखो, दैट इज लाइट वेव बेंड होने के लिए ये जो साइज है अपर्चर का, ये डोर है, ये छोटा, जितना छोटा होगा उतना वहां पे डायफ्रैक्शन होने वाला है। गॉट इट? जो जितना छोटा होगा उतना डायफ्रैक्शन ज्यादा होगा। यदि ये डोर का साइज ज्यादा होगा तभी भी हम लोगों को डायफ्रैक्शन नहीं होगा। ओके, इसी को और थोड़ा आगे सुनो अभी। In the order of 1 centimeter to 10 meter, the sound waves undergo high diffraction. However, the wavelengths of visible light is extremely small compared to the size of the opening D. Due to this, the diffraction is almost negligible. Now, if we reduce the size of ओके, तो यहाँ पे जितना डायफ्रैक्शन है वो हम लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट था कि लाइट वेव या साउंड वेव बेंड होता है, ये याद रखना है। वेव्स आर बेंडिंग टुवर्ड्स द ऑब्स्टेकल। ओके, इसी को हम लोग डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ओके, तो डेफिनेशन क्या लिया था डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट का? दैट इज द फिनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द एजेस ऑफ ऑब्जेक्ट and enter into the region of geometrical shadow is called a diffraction of light. तो ये डे टू डे लाइफ का एक एग्जांपल आप लोगों को बताया था। ओके, वी कैन एबल टू गेट दैट इज अ सच एग्जांपल्स। डायफ्रैक्शन हर जगह पे होता है, कहाँ कहाँ पे होता है वो हम लोगों को हर जगह पे ऑब्जर्व करना है। अभी मैं कुछ इमेजेस आपको दिखाता हूँ। ओके, नाउ लुक एट दिस इमेज। अब यहाँ पे क्या है, दैट इज वी आर अंडरनीथ द ट्री। यदि ऑब्जर्व किया यहाँ पे, okay, if we observe at this particular position, we are not getting the shadow of that tree. ट्री का shadow हम लोगों को यहाँ पे exactly वैसे के वैसे नहीं दिख रहा है। We are getting that is alternate dark and bright rings या alternate dark and bright bands are there. एक जगह से continuous हम लोगों को नहीं दिख रहा है। ओके, तो हम लोगों को अलग-अलग shadows दिख रही है। And why this is? This is because of the bending of light towards the obstacle means ये जो लीव्स है, ट्रीज की लीव्स है और ब्रांचेस है, उसके यहाँ से लाइट बेंड हुआ एंड वी आर गेटिंग सच अ टाइप ऑफ अ पैटर्न। इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज अ डायफ्रैक्शन। ये हम लोग उसको डायफ्रैक्शन बोल सकते हैं। ओके, नाउ लुक एट दिस ऑफ एग्जांपल देयर। तो रेनी सीजन में हम लोगों को बहुत बार ऐसे दिखता है, ये द सन इज बिहाइंड द ब्लैक क्लाउड। तो हम लोगों को ऐसे इस टाइप का पैटर्न दिखता है। सन नहीं दिखता है लेकिन हम लोगों को उसके रेज दिखाई देते हैं। ओके, व्हाई दिस इज हैपेंस देयर? बिकॉज ऑफ व्हिच वन? दैट इज नोन एज अ डायफ्रैक्शन। उसी को हम लोग डायफ्रैक्शन बोलेंगे। समझ में आ रहा है? ओके, थर्ड एग्जांपल देखो अभी। ओके, एट द टाइम ऑफ अ सनसेट और सनराइज वी आर गेटिंग सच अ टाइप ऑफ अ शेड्स आर देयर। ये हम लोगों को शेड्स ऐसे दिखाई देती है। ओके, और सनसेट होने के बाद या सनराइज होने से पहले हम लोगों को लाइट दिखाई देता है, हम लोगों को लाइट पता चलता है। ओके, व्हाई दिस इज? बिकॉज ऑफ द बेंडिंग ऑफ सन्स लाइट ड्यू टू द ऑब्स्टेकल एज लाइक अ सरफेस ऑफ द अर्थ। तो उसकी वजह से हम लोगों को ये लाइट दिखता है या अलग अलग शेड्स हम लोगों को यहाँ पे दिख रही है। ओके, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ अ डायफ्रैक्शन। ये डायफ्रैक्शन के एग्जांपल है। तो हम लोग बोलने याद क्या रखोगे? फॉर डायफ्रैक्शन साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल शुड बी कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। ओके, जैसे आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में दिखाया था कि लाइट का वेवलेंथ कम था इसलिए वहां पे लाइट बेंड नहीं हुआ दूसरे साइड में। ओके, लेकिन साउंड बेंड हुआ था। अब यहाँ पे ये कंपेरेबल है इसलिए। ओके ना, लुक एट दिस पोजीशन देयर। ये आप लोगों को ऑब्जर्व करना है। अब यदि इसको ऑब्जर्व किया तो अब देखो, दीज आर द लाइट शैडोज आर देयर। यहाँ पे आप लोगों को लाइट दिखता है, ये ऐसे जो पोजीशंस है पेंट शैडोज आर देयर। ओके, तो ये जो इमेजेस है इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज अ डायफ्रैक्शन। दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ द डायफ्रैक्शन। ये हम लोगों को डायफ्रैक्शन के कुछ एग्जांपल्स है। ओके, तो हम लोगों को ये टर्म याद रखना है। ओके, तो याद क्या रखोगे? वो देखो, दैट इज अ बेंडिंग ऑफ लाइट टुवर्ड्स द ऑब्स्टेकल, दैट इज कॉल्ड एज अ डायफ्रैक्शन। ठीक है, तो लाइट जहां पे बेंड होती है तब वहां पे हम लोगों को डायफ्रैक्शन बोलते हैं हम लोग। और कब बेंड होती है? व्हेन वेवलेंथ ऑफ द ऑब्स्टेकल, साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल इज कंपैरेबल टू द वेवलेंथ। यदि ऐसे है तभी हम लोगों को उसे दिखता है। ओके, अदरवाइज हम लोग को नहीं दिखेगा। गॉट इट? ये समझना जरूरी है। कब डायफ्रैक्शन दिखता है? व्हेन साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल इज कंपैरेबल टू द साइज ऑफ द वेवलेंथ। ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स यदि पॉसिबल है तभी हम लोगों को डायफ्रैक्शन दिखता है।
अंडरस्टूड दिस वन? तो डायफ्रैक्शन का मीनिंग आप लोगों को समझा होगा शायद, तो दो वीडियोस में आप लोगों को डायफ्रैक्शन का मीनिंग समझाया है। तो हम लोगों को डिस्कस करने हैं टाइप्स ऑफ डायफ्रैक्शंस। ठीक है, तो डायफ्रैक्शन के दो टाइप्स है। दैट इज फर्स्ट वन इज अ फ्रॉन-अपर डायफ्रैक्शन। मींस अब यहाँ पे जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यहाँ पे डायफ्रैक्शन ऑब्जर्व होने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, एक सोर्स चाहिए और दूसरा स्क्रीन चाहिए, और थर्ड वन ऑब्स्टेकल। ये तीनों चीजें हैं। यदि तीनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग मेजर कर पाते तब उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज अ फ्रॉन-अपर डायफ्रैक्शन। देखो, इफ द डिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट एंड द स्क्रीन used for viewing the diffraction pattern are very large from the slit causing the diffraction is called as a front-upper diffraction. यदि ये unmeasurable है, infinite distance है, okay, then it is called as a front-upper diffraction. Got it? कब कौन सा distance between the source and the screen is infinite. Okay, okay, तो very large है, तब हम लोग उसको बोलेंगे front-upper diffraction. Got it? और इसके अपोजिट दूसरा है, that is a Fresnel diffraction. तो क्या है वो देखो, in this case the distances are much smaller and the incident wavefront is either cylindrical or spherical depending on the source. A lens is not required to observe the diffraction pattern on the screen. तो फ्रॉन-अपर डायफ्रैक्शन ऑब्जर्व करने के लिए हम लोगों को लेंस की जरूरत है, फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन ऑब्जर्व करने के लिए लेंस की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज द डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल। ठीक है, तो ये दोनों का डिफरेंस है, याद क्या रखोगे। फ्रॉन-अपर डायफ्रैक्शन में क्या है, डिस्टेंस इज इनफाइनाइट, लार्ज, वेरी लार्ज डिस्टेंस है, तो फ्रॉन-अपर डायफ्रैक्शन। डिस्टेंस स्मॉलर है, देन इट इज कॉल्ड एज अ फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन। हम लोगों को स्टडी के लिए फ्रॉन-अपर डायफ्रैक्शन ही है। ओके, अभी हम लोगों को फ्रॉन-अपर डायफ्रैक्शन ही डिस्कस करना है, लेकिन एग्जैक्टली व्हाट काइंड ऑफ अ डायफ्रैक्शन टेक्स प्लेस देयर और हाउ दिस टेक्स प्लेस देयर, दैट वी हैव टू स्टडी हियर। अब फिर से एक बार एक वीडियो आपको दिखा रहा हूं, तो वो वीडियो अच्छे से सुन लो। Degree light, so it's really easy to see in a classroom. I'm using a laser pointer to make sure that it's eye safe, and I've arranged it so that if I twist it in the clamp, I can get the laser to come on and hold itself on. And now I'm going to shine the laser onto the second part of the experiment, that's the screen. You can see the path of the laser beam by just using a piece of paper. You can track the laser beam back towards the laser pointer by just moving it backwards and forwards. Or slightly more dramatically, you can just use a mister to spray some mist in the way and give it that James Bond effect. Now the third part of the experiment is simply a thin piece of wire. Now, this wire is about 100 microns in diameter. If I slide my finger at the wire, you should be able to see it quite clearly. Now the experiment consists of sliding the wire a stiff degree light, so it's really a stiff degree. It's really easy to stiff degree light, so it's really easy to see in a classroom. I'm using a laser pointer to make sure that it's eye safe, and I've arranged it so that if I twist it in the clamp, I can get the laser to come on and hold itself a stiff degree light, so it's really easy to see in a classroom. A stiff degree light, so it's really easy to see in a classroom. I'm using a laser pointer to make sure that it's eye safe, and I've arranged it so that if I twist it in the clamp, I can get the laser to come on and hold itself on. And now I'm going to shine the laser onto the second part of the experiment, that's the screen. You can see the path of the laser beam by just using a piece of paper. You can track the laser beam back towards the laser pointer by just moving it backwards and forwards. Or slightly more dramatically, you can just use a mister to spray some mist in the way and give it that James Bond effect. Now the third part of the experiment is simply a thin piece of wire. Now a stiff degree light, so it's really easy to see in a classroom. I'm using a laser pointer, a stiff degree light, so it's really easy, a stiff degree light, so it's really stiff degree light, so it's really easy to see in a classroom. I'm using a laser pointer to make sure that it's eye safe, and I've arranged it.
ओके, एक्चुअली मैंने जानबूझ के फिर से वीडियो लगाया, किस लिए लगाया वो देखो। तो आपको ये समझना है कि किस लिए वीडियो मैंने रिपीट लगाया है वो देखो। तो पहले इसने यहाँ पे एक लेजर बीम लिया है, ये लेजर बीम। अब यहाँ पे स्प्रे करने के बाद यहाँ पे ऑब्जर्व करना है आपको लाइट में क्या चेंजेस होते हैं, ठीक है। ये हम लोगों को लेजर के रिफ्रैक्शंस दिख रहे हैं, ठीक है। तो वो आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है। अभी ये यहाँ पे देखो एक वायर लिया है, सिर्फ सिंपली स्मॉल वायर ही हैव टेकन देयर, ठीक है। देखो अभी ये वायर लिया है उसने, ठीक है। सिंपली दैट इज अ वेरी स्मॉल वायर ही हैव टेकन देयर, बिकॉज व्हाई इट इज, बिकॉज दैट इज अ object must be of a very small. अभी इसके ऊपर लाइट क्या होता है वो देखो। अभी यहाँ पे ऐसे दिखना चाहिए, ठीक है, और इसमें बीच में हम लोगों को वायर दिखनी चाहिए, ऐसे ये बता रहा है, ऐसे हम लोगों को दिखना चाहिए, ठीक है। दैट इज जो स्पॉट है यहाँ पे, इसके ऊपर एक डार्क लाइन हम लोगों को दिखनी चाहिए, ऐसे इसने बताया, ठीक है। ओके, तो एक्चुअली अभी क्या होता है वो देखो। स्क्रीन पे देखो अभी अच्छे से, अभी देखो ये है, ये सेंट्रल ब्राइट बैंड है, यहाँ पे कुछ भी डार्क लाइन नहीं है, ओके। देयर इज अल्टरनेट डार्क और ब्राइट बैंड्स हम लोगों को अलग अलग साइड में दिख रही है। तो व्हाई दिस हैपेंस, ये वेव नेचर कैसे बताता है, ये हम लोगों को डिस्कस करना था। ये यहाँ पे जो लाइट है, ये वायर है, इसके ऊपर लाइट बेंड हुआ, इसलिए दोनों साइड से, इस साइड्स में इस तो यहाँ पे ये यहाँ पे इंटरफ्रेंस हो रहा है, तो अभी हम लोगों ने क्या देखो, तो इंटरफेरेंस कहाँ, सॉरी डायफ्रैक्शन कहाँ पे होता है, व्हेन लेजर लाइट हम लोगों ने एक वायर पे छोड़ा, तो वहां पे हम लोगों को डायफ्रैक्शन दिखाई देता था, और वी आर गेटिंग दैट इज अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस, बैंड्स दिखाई देते थे। वो हम लोगों ने डिस्कस किया, या वो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो वही हम लोगों को फ्रॉनापर ने बताया, वही पार्ट अभी वही हम लोगों को डिस्कस करना है, दैट इज द फ्रॉनापर डायफ्रैक्शन ड्यू टू द सिंगल स्लिट। अब ये फ्रॉनापर डायफ्रैक्शन वही हम लोगों को डिस्कस करना है, वो देखो। नाउ हियर इट एस इज नथिंग बट द सोर्स ऑफ लाइट, यहां से लाइट इंसिडेंट होती है, ओके। नाउ मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट एस एट द फोकस ऑफ द कन्वर्जिंग लेंस। अब यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस है, एंड दैट्स व्हाई हियर वी आर गेटिंग दैट इज अ प्लेन वेव फ्रंट इज देयर। तो इस लेंस की वजह से ये सोर्स इंफिनिटी डिस्टेंस पे है, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे प्लेन वेव फ्रंट मिला। दैट इज अ प्लेन वेव फ्रंट फ्रॉम द लेंस आर इंसिडेंट ऑन द डायफ्रैक्टिंग एलिमेंट। यहाँ पे डायफ्रैक्टिंग एलिमेंट है जो ऑब्जर्व हो रहा है आप लोगों को, ये डायफ्रैक्टिंग एलिमेंट है, दैट मे बी slit, that may be circular aperture, or that may be double slit or grating. That is the emerging beam is incident on another converging lens. अब यहाँ से ये लाइट है, ये इस पोजीशन पे इंसिडेंट होगा। अब क्या होने वाला है, दैट इज एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट, ये जो स्लिट है इसके हर एक पॉइंट क्या होगा, इट इज एक्टिंग एज लाइक अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट एंड emits light waves in all directions, and that's why there is a diffraction takes place on the screen. यहाँ पे जो स्क्रीन है वहां पे हम लोगों को डायफ्रैक्शन दिखाई देता है। There is emerging incident on the another converging lens that focuses the beam on a screen. Got it? अब देखो, in this case
फ्रॉन अपर डायफ्रैक्शन के लिए इन दिस केस द सर्कुलर अपर्चर एस इज अ पॉइंट सोर्स। अभी यहाँ पे हम लोगों ने पॉइंट सोर्स कंसीडर किया एंड द लेंसेज आर बाइकॉन्वेक्स, यहाँ पे लेंस बाइकॉन्वेक्स लिया। लेकिन फॉर लीनियर एलिमेंट्स लाइक स्लिट के लिए या ग्रेटिंग के लिए द सोर्सेस इज लीनियर एंड द लेंसेज आर सिलिंड्रिकल इन शेप सो दैट द फोकस्ड इमेज इज आल्सो लीनियर। मतलब यहाँ पे फोकस्ड इमेज लीनियर होगा क्योंकि लीनियर सोर्स के लिए लीनियर ही हम लोगों को मिलना चाहिए। दिस इज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रॉन अपर डायफ्रैक्शन। तो फ्रॉन अपर के डायफ्रैक्शन के हिसाब से हम लोगों को जो चाहिए वो हम लोगों ने ये कंसीडर किया। ये है रिक्वायर्ड कंडीशंस ऑफ अ फ्रॉन अपर डायफ्रैक्शन। ये फ्रॉन अपर डायफ्रैक्शन ऐसे हो जाता है। ओके, दैट यू हैव टू रिमेंबर देयर। इसमें से यहां से इस साइड का पार्ट जो भी है, ओके, ये जो पार्ट है ये हम लोग नहीं दिखेंगे या हम लोगों को नहीं दिखाएगा। अब देखो फ्रॉन अपर डायफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट, ये हम लोगों को स्टडी करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक स्लिट है। नाउ कंसिडर अ प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन अ सिंगल स्लिट AB of width A। यहाँ पे width AB is nothing but the width of the slit AB. Okay, the center of the slit is at point O. यहाँ पे O is nothing but the center of the slit. ठीक है, the slit can be imagined to be divided into number of extremely thin slit elements. अभी ये अलग अलग elements से बना हुआ है, thin slits से बना हुआ है, ऐसे हम लोग मान लेंगे। ठीक है, now इससे स्लिट के दो पार्ट्स हम लोगों ने किए। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है, ये हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। और दिस एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्स, दैट इज जो स्लिट का हर एक पॉइंट है, जैसे हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, हर एक पॉइंट दैट इज एक्टिंग एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट हाइजेंस प्रिंसिपल के हिसाब से। एंड एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट एंड इमिट्स लाइट वेव्स इन ऑल डायरेक्शन। ये सभी डायरेक्शन में लाइट इमिट करेगा। एज द प्लेन वेव फ्रंट रीचेज द स्लिट, ईच स्लिट एलिमेंट, ओके, हर एक स्लिट एलिमेंट दैट इज एक्टिंग एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, तो क्या होगा, बिकम्स अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट रिस्पॉन्सिबल फॉर डायफ्रैक्शन इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। तो वहां पे हर एक पॉइंट का डायफ्रैक्शन होगा। नाउ उसकी वजह से क्या होने वाला है, देखो अनदर सिलिंड्रिकल लेंस, अभी यहाँ पे हमें दूसरा सिलिंड्रिकल लेंस there is with its axis parallel to the slit kept next to the slit converging the emergent beam on the screen kept at the focus. ओके, तो इसका जो फोकस है ये यहाँ पे हम लोगों को मिला है एंड एट दिस फोकस वी आर प्लेस्ड एट द स्क्रीन। तो ये है स्क्रीन, ठीक है, जहां पे हम लोगों को स्क्रीन मिलेगा। तो ये स्क्रीन है एंड वी आर गेटिंग दैट इज अ करस्पॉन्डिंग पोजीशन। अंडरस्टूड दिस वन? तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है दैट इज एक्चुअली इट इज अ फोकस। अब ये जो है इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए ओके, अब देखो ये जो पोजीशन है यहाँ पे ये जो पार्ट है ये एग्जैक्टली एक्चुअली व्हाट हैपेंस हियर, ये लेंस स्लिट को टच है। ओके, लेकिन हम लोगों को समझने के लिए ये एक्स्ट्रा पार्ट ये एक्सटेंडेड है। ओके, बाद में हम लोग लिखने वाले दैट इज F इज इक्वल टू डी, यहाँ पे लिखो लिखा है F इज इक्वल टू डी, लेकिन डी कहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस डी है। ओके, फोकस कहाँ से यहाँ तक का, लेकिन बाद में हम लोग क्या बोलने वाले हैं, F इज इक्वल टू डी। समझने के लिए सिर्फ ये आगे एक्सटेंड डायग्राम एक्सटेंड किया है। गॉट इट? तो हम लोगों को याद रखना है कि ये जो लेंस है, लेंस के फोकस पे हम लोगों ने स्क्रीन रखा है। ओके, एंड हियर वी आर गेटिंग दैट इज अ इमेज। यहाँ पे डायफ्रैक्शन पैटर्न हम लोगों को दिखने वाला है। गॉट इट? अब ये डायफ्रैक्शन पैटर्न कौन सा है, फ्रॉन अपर डायफ्रैक्शन है। तो हम लोगों को वो समझना है कि फ्रॉन अपर डायफ्रैक्शन कैसे दिख रहा है। अब देखो, now the distance d between the slit and the screen is practically the focal length f of the lens, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। For all practical setups d is very greater than that of a a। अभी a क्या है यहाँ पे, that is a is nothing but the slit width। ये जितना छोटा होगा उतना डायफ्रैक्शन अच्छे से दिखेगा, and that's why we are using this condition। This capital D is very greater than that of a small a। ओके, तो हम लोगों को ये टर्म अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो ये कैपिटल डी मस्ट बी वेरी स्मॉल, सॉरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द
स्लिट विड्थ, ये जो है विड्थ ऑफ द स्लिट दैट इज ए, ओके, ये जितना छोटा होगा कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, उतना हम लोगों को डायफ्रैक्शन पैटर्न यहाँ पे अच्छा दिखेगा, ठीक है, तो वो हम लोगों को समझना है। ओके, तो फिर से एक बार अभी लोकेशन ऑफ मिनिमा एंड मैक्सिमा हम लोगों को डिस्कस करना है। तो अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस करना है, देखो वही डायग्राम अभी मैंने यहाँ पे ली है। ओके, तो क्या है, हियर इट इज अ स्लिट, फिर से हम लोगों ने डिस्कस करना है। तो अब द रेज फ्रॉम ऑल पॉइंट्स ऑफ ए एंड बी पैरेलल टू द एक्सिस, यहां से जो पैरेलल रेज जाने वाले पैरेलल टू द एक्सिस अराइव एट द सेंट्रल पॉइंट पी इन ए सेम पेज। यहां से अब देखो मैं जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, क्या दिख रहा है आप लोगों को, ये यहां से ऐसे लाइन जो जा रहा है, ओके, तो यहाँ पे इनमें कुछ भी पाथ डिफरेंस नहीं है, दे आर ट्रेवलिंग इक्वल डिस्टेंस, ये इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, इसीलिए उनमें कुछ भी डिस्टेंस पाथ लेंथ का डिफरेंस नहीं है, पाथ लेंथ का। ओके, कहां से, ए से निकलने वाला और बी से निकलने वाला, दोनों में रेज में कुछ भी पाथ डिफरेंस नहीं है। एंड इफ देयर इज अ नो पाथ डिफरेंस या जीरो पाथ डिफरेंस इज देयर, एज वी आर वेल नो, देयर इज अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस। कंस्ट्रक्टिव मतलब क्या हुआ, देयर इज अ, वी आर गेटिंग द ब्राइटनेस, और यहाँ पे वी आर गेटिंग द मैक्सिमम इंटेंसिटी एट पॉइंट P0। ये P0 पे हम लोगों को मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑब्जर्व होगी, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ सेंट्रल मैक्सिमा। ओके, इसी को हम लोग सेंट्रल मैक्सिमा ऐसे बोलते हैं। समझ में आ रहा है? अब यहां से जो डायफ्रैक्टेड ए और बी से जो डायफ्रैक्टेड रे जाएंगे, वो क्या क्या कैसे होगा वो डिस्कस करते भी। एज एंगल थीटा इंक्रीजेस द इंटेंसिटी चेंजेस बिटवीन द अल्टरनेट मिनिमा एंड मैक्सिमा। अब यहाँ पे एंगल जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे हम लोगों को अल्टरनेट मिनिमा और मैक्सिमा हम लोगों को दिखाई देगा, ये हम लोगों को डिस्कस करना है, ठीक है। तो कैसे होता है वो देखो, इन केस ऑफ पॉइंट P, ये जो हम लोगों ने पॉइंट P कंसीडर करते हैं, ये पॉइंट है, ओके, इन केस ऑफ अ पॉइंट P दैट एंगुलर पोजीशन थीटा, यहाँ पे एंगुलर पोजीशन कितना है, थीटा, इफ दैट एंगुलर पोजीशन इज थीटा, द नेट पाथ डिफरेंस बिटवीन द एक्सट्रीम रेज AP एंड BP इज BC, दैट इज इक्वल टू A sin थीटा। तो समझने के लिए अब देखो, यहाँ पे दो रेज हम लोगों ने कंसीडर किए, ए ओके, एक डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूं, ए पॉइंट है, ए बी पॉइंट है और ये पी पॉइंट है, यही डायग्राम में फिर से ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। तो अब देखो यहां से जो रेज ऑफ लाइट ट्रेवल करेंगे, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया था ए टू पी और बी टू पी जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, दोनों सेम नहीं है, करेक्ट। तो यदि यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, if it is a perpendicular is drawn, here it is, okay, then these two lines are approximately equal, ये दोनों, तो इसको मैंने पॉइंट दे दिया C। तो ये जो BC डिस्टेंस है that is approximately considered as a path difference, इसी को हम लोग path difference ऐसे बोलते हैं। समझ में आ रहा है, ये है पाथ डिफरेंस, गॉट इट। अब ये पाथ डिफरेंस हम लोगों को निकालना है, तो यहाँ का जो ये एंगल है दैट बिकम्स थीटा, ओके, यहां से डिस्टेंस कितना है, इट इज ए, ओके, रिमेंबर हियर इट इज ए बी डिस्टेंस है ए, तो ये थीटा यदि हम लोगों को, ये BC हम लोगों को निकालना है, दैट इज द पाथ डिफरेंस इज नथिंग बट द BC। तो इस पर्टिकुलर ट्रायंगल के लिए ABC, इस ट्रायंगल के लिए यदि मैंने cos थीटा इज इक्वल टू अप्लाई किया, तो हम लोगों को क्या मिलने वाला है, देखो cos थीटा इज नथिंग बट द एडजेसेंट साइड, सॉरी cos थीटा नहीं, ओके, वी वांट टू यूज दैट इज sin थीटा, क्योंकि मुझे थीटा के अपोजिट साइड में निकालना है, ठीक है। तो sin थीटा इज नथिंग बट द अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज BC अपॉन AB, वी आर गेटिंग इन दिस वे, ठीक है। समझ में आ रहा है, मतलब BC इज इक्वल टू क्या मिला, देखो AB sin थीटा, ओके, लेकिन AB कितना है, इट इज A, तो इसीलिए हम लोगों को मिला A sin थीटा, वी आर गेटिंग इन दिस वे,
गॉट इट? तो BC इज इक्वल टू AB sin थीटा जो लिखा है, ये देखो यहाँ पे BC इज इक्वल टू AB sin थीटा जो लिखा है, ओके, दैट इज फ्रॉम दिस इक्वेशन। तो हम लोगों को ये याद रखना है कि हम लोगों ने कैसे निकाला BC इज इक्वल टू A sin थीटा, इस पोजीशन से ऐसे निकाला। ये डायग्राम मैंने हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा एक्सटेंड किया वो समझने के लिए। ये डायग्राम यहाँ पे, ये इस पोजीशन को, डायग्राम को मैंने यहाँ पे थोड़ा मैक्सिमाइज किया, ये आप लोगों को दिखाया मैक्सिमाइज करके। समझ में आ रहा है? तो हम लोगों को वो BC इज इक्वल टू A sin थीटा मिला। ठीक है, अब देखो यदि हम लोग यहाँ पे let, that is path difference between the secondary waves from A and B to reach point A is a lambda, यदि हम लोग इसको लैम्डा कंसिडर करते, तो यदि ये लैम्डा डिस्टेंस कंसिडर करते हैं तो हम लोगों को BC A sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा ये कंडीशन मिलने वाला है। ठीक है, A sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा ये कंडीशन मिलने वाला है। तो अब देखो थोड़ी देर के लिए मैं सब ये ड्राइंग क्लियर कर देता हूँ। इतना ये समझा है सब लोगों को? ओके, प्लीज चैट यस और नो। ये पार्ट समझा है क्या? देखो तो इसको मैं थोड़ा रब करने वाला हूँ। ओके, टेक्स्ट करके भेज दो। ये समझ में आ रहा है? तो A sin थीटा हम लोगों को मिला, दैट इज BC इज इक्वल टू A sin थीटा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज अ पाथ डिफरेंस। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस, अब देखो पाथ डिफरेंस, गौरव गिरी क्या नहीं समझा? गौरव गिरी के लिए देखो भी, गौरव गिरी के लिए मैं बता रहा हूँ उसके लिए। तो फिर से जस्ट रिवाइज करता हूँ। तो ये जो डायग्राम, ये हम लोगों ने ये ट्रायंगल कंसीडर किया, ये ट्रायंगल कंसीडर करो। देखो इस ट्रायंगल में ABC इतना ट्रायंगल कंसीडर करो, इसमें AB इज इक्वल टू A है, ये एंगल यहाँ पे थीटा है, इसका मैंने साइन थीटा लिया। साइन थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AB, दैट इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। ये हाइपोटेनस हुआ यहाँ पे 90 डिग्री है। ओके, तो ये AB इज नथिंग बट द हाइपोटेनस। तो हम लोगों को BC अपॉन AB हम लोगों को मिला, दैट मींस BC इज इक्वल टू AB sin थीटा, ये मिला। दैट इज AB इज इक्वल टू A है, इसलिए हम लोगों को A sin थीटा मिला। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज अ पाथ डिफरेंस। ठीक है, अब ये आगे का कंडीशन क्या है इसके बारे में हम लोगों को सोचना है। इस सोचने के लिए मुझे यहाँ पे दूसरा स्लाइड आने वाला है, इसलिए मुझे ये रफ करना पड़ेगा। ठीक है, क्या ओवरलैप होता है क्या? देखिए कितना ओवरलैप हो रहा है। तो देखो, it means that potential difference, there is a path difference between the waves from A and O is lambda by 2। अब यहाँ पे जो path difference है, ये जो waves है कौन सी देखो, अब मैं फिर से, अब यहाँ से जो waves है ये इतना, यहाँ का वेव और यहाँ का वेव, इन दोनों में पाथ डिफरेंस, ये जो जाने वाली वेव्स है इधर से इधर, तो इन दोनों में पाथ डिफरेंस कितना है? इधर का पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 है और इधर का पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2। दोनों में पाथ डिफरेंस कितना हुआ? लैम्डा बाय 2 है। तो टोटल पाथ डिफरेंस यदि लैम्डा हम लोग कंसीडर करते हैं, ये लैम्डा यहाँ पे लिया है, ओके, तो टोटल पाथ डिफरेंस लैम्डा कंसीडर करते हैं, तो ये लैम्डा बाय 2 हुआ और ये लैम्डा बाय 2 हुआ। अब अकॉर्डिंग टू द conditions for constructive interference, if path difference is lambda by 2, then there is a destructive interference। तो वहां पे destructive interference होता है और हम लोगों को मिलेगा then this point wave that is AB and meets the phase difference। तो क्या दिख रहा है? देखो, that is OB meets out of phase and the point P, so that the point P क्या मिलने वाला है? यहाँ पे क्या लिखा है वो देखो। ओके, तो हम लोगों ने क्या लिखा है यहाँ पे? दैट इज द फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा इज ऑब्जर्व्ड देयर। ठीक है, तो मुझे क्या मिल रहा है? फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। कैसे मिल रहा है वो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। ओके, तो ये पार्ट याद रखो कि मैंने क्या लिखा है, दैट द पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा। उसके दो पार्ट्स कैसे होते हैं ये भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट पाथ डिफरेंस A to O और O to B, ऐसे दो पॉइंट्स का पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 है। ये कैसे होता है ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर के बाद। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में वही मैं अभी ये जो यहाँ पे एक्सप्लेन किया वही मैं डिटेल में भी एक्सप्लेन कराऊं। देखो भी,
अब देखो, समझने के लिए हम लोगों ने एक एग्जांपल कंसीडर किया। मैंने यहाँ पे एक स्लिट बनाया, दो बॉक्स के बीच में हम लोगों ने स्लिट थोड़ी देर पहले जिससे डिस्कस किया था। ओके, ये स्लिट है, समझने के लिए याद रखना। ओके, कहां से कहां तक? दिस इज नथिंग बट द स्लिट। ठीक है, इसको मैंने ए पॉइंट दे दिया, इसको बी पॉइंट दे दिया, और यहाँ पे हम लोगों को स्क्रीन दिखता है, ये स्क्रीन है। ठीक है, अब ये दिस इज नथिंग बट द मिड पॉइंट ओ, और यहां से हम लोगों को ऐसे सीधा लाइट ट्रेवल होता है, और यहाँ पे मुझे मिलता है P0 पॉइंट। ठीक है, बिकॉज द लाइट गोइंग फ्रॉम दैट इज A टू P एंड P0 टू B, ये दोनों इक्वल है। ओके, बिकॉज दैट इज OP0 इज नथिंग बट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोगों को ये मिला, हमको सेंट्रल मैक्सिमा। ओके, ये याद रखना, ये क्या है? सेंट्रल मैक्सिमा है। ओके, इसके डिटेल में इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, सेंट्रल मैक्सिमा के बारे में। ठीक है, तो पहले हम लोग सेंट्रल मैक्सिमा कैसे आता है वो डिस्कस किया। कब आएगा ये? व्हेन देयर इज अ जीरो पाथ डिफरेंस, ये दोनों के बीच में कुछ भी पाथ का डिफरेंस नहीं है तब। ठीक है, अब देखो, ये समझने के लिए हम लोगों ने ये इसको मैंने थोड़ा एक्सटेंड किया। ठीक है, अब देखो, अब A टू B बहुत सारे पॉइंट्स हैं, यहाँ पे A और B एंड पॉइंट्स है, इसके बीच में भी बहुत सारे पॉइंट्स है। These are nothing but the points। अब जैसे लाइट यहाँ से, ये जो लाइट से लाइट जाने वाली है, okay, when this light travels here it is, at that time what happens here it is incident on all these points। ये छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने दिखाया भी, वो सभी पॉइंट्स के ऊपर लाइट इंसिडेंट होगा, and every point will act as a secondary source of light and emit the light waves in all directions। तो सभी डायरेक्शन में लाइट वेव ट्रैवल करेगा, ये हम लोगों ने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो अब देखो, अब यदि यहाँ का जो वेव है, जो इंसिडेंट होने वाला वेव है, ये वेव का पोजीशन ऐसे आता है। ओके, तो ये वेव ऐसे मान लिया। अब देखो, यहाँ पे A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। ठीक है, ये इसका सेंटर है O पॉइंट। गॉट इट? अब देखो, ये टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? एक वेव है, इसका मतलब क्या हुआ? ये टोटल डिस्टेंस लैम्डा है। ठीक है, अब यहाँ पे A और B के बीच में कितना डिस्टेंस का डिफरेंस आया? लैम्डा डिस्टेंस का डिफरेंस आया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं पाथ डिफरेंस। मैं थोड़ा ये यहाँ पे ऊपर लिखता हूं। ओके, तो अब देखो, पाथ डिफरेंस पीडी मैंने लिखा, दैट इज इक्वल टू, यदि लैम्डा है तो ये जो ए बी स्लिट है, इसके मैंने दो पार्ट्स किए। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हुआ? ये लैम्डा बाय 2 है। अब और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? लैम्डा बाय 2। मींस वी हैव डिवाइडेड द स्लिट इनटू द टू इक्वल हाफ्स। ओके, टू इक्वल पार्ट्स में हम लोगों ने डिवाइड किया। अब क्या होने वाला है वो देखो, तो समझने के लिए देखो, अभी ये यहां का लाइट, ये यहां से जाने वाला है, तो ये जो लाइट जाने वाला है, ये दोनों में पाथ डिफरेंस कितना हुआ? लैम्डा बाय 2। ओके, तो ये लैम्डा बाय 2 पाथ डिफरेंस इधर से जो जाने वाला पार्ट है, ये एक गया इधर, और इधर से जो जाने वाला ये इधर गया। ठीक है, तो इन दोनों में पाथ डिफरेंस लैम्डा आया, एंड अकॉर्डिंग टू
constructive difference, or we can able to say that is a conditions for constructive and destructive interference. So यदि path difference lambda by 2 आता है दोनों पार्ट्स में, इधर का पार्ट और इधर का पार्ट, ये याद रखना, AO पार्ट एंड BO पार्ट, ये दोनों अलग अलग पार्ट्स एक्ट हो रहे, और ये जो लाइट है, इधर से जो जाने वाला लाइट है, ये यहाँ पे ये इधर से जाएगा, ये इधर से जाएगा, और यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे का जो इफेक्ट है ये कैंसिल करते हैं, एंड वी आर गेटिंग दैट इज अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. तो हम लोगों को यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है, क्योंकि इधर का पाथ और इधर का पाथ, इन दोनों में पाथ डिफरेंस कितना है, ये लैम्डा बाय 2 है, ये लैम्डा बाय 2. गॉट इट? तो यहाँ पे एक दूसरे को सेम पोजीशन पे आ गए. जैसे कि हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस समझने के लिए देखो, ये फोर्स का एग्जांपल लेते हैं, एक पर्सन इधर खींच रहा है, दूसरा पर्सन इधर से इधर खींच रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है. ओके, तो क्या होने वाला है, यहाँ पे एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल करने वाले. ओके, तो इधर इफेक्ट कैंसिल हुआ, मतलब हम लोगों को क्या मिला, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिला. ओके, तो हम लोगों को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, मींस हम लोगों को क्या मिलने वाला है, यदि लैम्डा पाथ डिफरेंस है, एट दैट टाइम वी आर गेटिंग दैट इज अ सेकेंडरी मिनिमा. ओके, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है मतलब हम लोगों को मिलेगा सेकेंडरी मिनिमा. गॉट इट? समझ में आ रहा है ये? तो अब देखो, ये कब है, व्हेन वी आर गेटिंग दैट इज अ लैम्डा पाथ डिफरेंस. ठीक है, लैम्डा पाथ डिफरेंस है तब वैसे होने वाला है. अब देखो, यदि मैं इसको रिमूव करता हूं, ना, अब इसके जगह पे इफ द पाथ डिफरेंस इज 2 लैम्डा, मतलब क्या हुआ, यहाँ पे A to B देयर इज अ जनरेशन ऑफ अ 2 वेव्स, मतलब यहाँ पे बीच में और एक पार्ट हम लोगों ने ऐड किया. ओके, तो ये ऐसा एक वेव हुआ, ये जो लैम्डा डिस्टेंस है, और ये दूसरा यहाँ पे ऐसा एक वेव जनरेट हुआ, ये लैम्डा डिस्टेंस आया. अब क्या होने वाला है, देखो, हियर इट इज, दिस स्लिट AB इज डिवाइडेड इनटू द 4 इक्वल पार्ट्स. पहले हम लोगों ने लैम्डा के लिए 2 इक्वल पार्ट्स किए थे, अब यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट्स हो गए. ओके, तो 4 इक्वल पार्ट्स हुए, इसलिए क्या होने वाला है, इसका लैम्डा बाय 2 डिस्टेंस है. ओके, समझ लो अभी. अब ये जो पहला पार्ट है, इसका लैम्डा बाय 2 पाथ डिफरेंस है, ये दूसरा पार्ट है, इसका लैम्डा बाय 2 पाथ डिफरेंस है. ठीक है, तो ये लैम्डा बाय 2 पाथ डिफरेंस आया, यहाँ पे लैम्डा बाय 2 पाथ डिफरेंस आया, तो ये दोनों एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल करेंगे, यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल करेंगे. ठीक है, मतलब अब देखो, ये और ए एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल करेंगे, यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने वाला है, ये और ए यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने वाला है, ये इफेक्ट इसका कैंसिल करने वाला है, मतलब लाइट यहाँ से आगे जाएगा ही नहीं. तो यहाँ पे जो P पॉइंट है, यहाँ पे फिर से हम लोगों को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, एंड फिर से हम लोगों को सेकेंडरी मिनिमम मिलेगा. मतलब लैम्डा 2 लैम्डा या 3 लैम्डा लिया या एनी वन, तो ऐसे हम लोग इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. 3 लैम्डा लिया तो इसके, जब इधर 2 लैम्डा लिया तो 4 इक्वल पार्ट्स किए थे, 3 लैम्डा लिया तो ये 4 की जगह पे 6 आएगा. ओके, 4 लैम्डा होगा तो 6 की जगह पे 8, मींस we can able to divide this slit into the even equal parts. अब वहां पे हर बार हम लोगों को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा 2 हाफ पार्ट्स में, और हम लोगों को हर बार मिलेगा सेकेंडरी मिनिमा. तो जो कंडीशन क्या आने वाला है, देखो, सेकेंडरी मिनिमा के लिए हम लोगों को क्या मिलेगा, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, मतलब क्या हुआ, इफ इट इज n लैम्डा देन वी आर गेटिंग दैट इज अ सेकेंडरी मिनिमा. ओके, तो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू क्या कंडीशन आने वाला है, n लैम्डा. ओके, तो ये याद रखो, if path difference is equal to n lambda, we are getting that is a secondary minimum. तो हम लोगों को ये याद रखना है कि सेकेंडरी मिनिमा हम लोगों को कब मिल रहा है. ठीक है, कब, when it is a path difference is n lambda. Got it? लैम्डा 2 लैम्डा और 3 लैम्डा. इसके जगह पे अब देखो, इसके जगह पे मैंने अब कंडीशन हम लोगों ने उल्टा, ये पार्ट समझाएगा. देखो, सबको सेकेंडरी मिनिमा कब मिलता है, ये पार्ट समझा के देखो, क्योंकि मुझे वो रब करना है. ओके, टेक्स्ट करो एस और नो, यदि नहीं है तो इसको रिपीट कर सकते हैं हम लोग.
शादी का। अब देखो फिर से, जिनको नहीं समझा था उनके लिए फिर से, अभी क्या देखो हम लोगों ने क्या बोला है कि यदि A टू B जो भी स्लिट है इट कैन बी डिवाइडेड इनटू द इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो ये इक्वल पार्ट्स में हम लोगों को डिवाइड कर सकते हैं। अब इफ इट इज डिवाइडेड इनटू द इवन नंबर, अब देखो 4, 6, 8 और इसके पहले था 2। अब लैम्डा के लिए हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? 2 लैम्डा के लिए 4, 3 लैम्डा के लिए 6, यहाँ पे 4 लैम्डा आएगा तो ये 8। If the slit is divided into the even equal parts, at that time every time there is a destructive interference, क्योंकि एक पार्ट के लिए दूसरा पार्ट है ही यहाँ पे, एक दूसरे में यहाँ पे एक दूसरे का इफेक्ट ये कैंसिल करने वाले। ओके, मतलब लैम्डा जब भी होगा ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल करेंगे, और एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल किया तो आगे यहाँ पे जाके कुछ भी इफेक्ट नहीं मिलने वाला है। समझ में आ रहा है? ये यहाँ पे जाके हम लोगों को कुछ भी इफेक्ट नहीं मिलेगा। कब? When it is divided into the even equal parts। ठीक है, इवन इक्वल पार्ट्स के लिए, इसीलिए बीच का जो पार्ट है दैट इज ऑड इक्वल पार्ट्स। ऑड इक्वल पार्ट्स को अभी हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है। ओके, वो अभी डिस्कस करना है, ऑड इक्वल पार्ट्स का क्या कंडीशन आता है। ओके, तो वहां पे क्या होता है वही के लिए अभी याद रखो कि इवन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा एंड वी आर गेटिंग सेकेंडरी मिनिमा। ठीक है, इफ slit is divided into the even equal parts, if path difference is lambda, 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda and so on। यदि पाथ डिफरेंस ऐसे है तब हम लोगों को सेकेंडरी मिनिमा मिलेगा या वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा रिमूव करता हूं। ओके, सब पार्ट नहीं, अब हम लोगों को ऑड पार्ट्स के बारे में डिस्कस करना है। यदि ऑड पार्ट्स होते हैं तब हम लोगों को क्या होता है, ये कंडीशन हम लोगों को यहाँ पे लिखना है अभी। ठीक है, ये मैं ऐसे रखता हूं। ओके ना, अब देखो A टू B इफ इट इज डिवाइडेड इनटू द ऑड इवन पार्ट्स, मतलब क्या हुआ? ऑड इक्वल पार्ट्स मतलब पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू इवन पार्ट। इसके बाद का इवन पार्ट क्या है? इट इज 3 लैम्डा बाय 2। इसके बीच में ये 1 आया है यहाँ पे, तो 2 और 4 के बीच में 3 है, हर एक पार्ट लैम्डा बाय 2 है। ठीक है, ये 2 लैम्डा बाय 2 है, ये 4 लैम्डा बाय 2 है। ओके, तो इसे ये 3 लैम्डा बाय 2 लिया, मतलब क्या हुआ? यहां से यहां तक का जो वेव है इट इज डिवाइडेड इनटू द 3 इक्वल पार्ट्स। गॉट इट? मतलब अब यहाँ पे जो वेव जनरेट होने वाला है ये ऐसे हुआ, वी आर गेटिंग इन दिस वे। तो यहाँ पे अब देखो ये जो क्रस्ट है और ये ट्रफ है, ये दोनों इक्वल पार्ट्स हुए। अब इनका इफेक्ट यहाँ पे कैंसिल होने वाला है, एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल हुआ। सॉरी, अब ये जो क्रस्ट बच रहा है तीसरा पार्ट, इसका इफेक्ट कैंसिल करने के लिए इसको दूसरा कोई भी पार्टिसिपेंट नहीं है, तो इसका इफेक्ट क्या होगा? ये डायरेक्टली यहाँ पे शो होगा। दैट मीन्स इंटेंसिटी ऑफ दिस पार्ट, ये जो पार्ट दिख रहा है, तो ये जो पार्ट है इसका इंटेंसिटी यहाँ पे हम लोगों को P पोजीशन पे दिखेगा। अंडरस्टूड दिस वन? अब इसकी वजह से हम लोगों को यहाँ पे क्या मिलने वाला है? अब देखो इस दोनों पोजीशन पे यहाँ पे हो गया हम लोगों का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब ये कुछ भी नहीं हुआ, ये ऐसे कैसे गया? मींस वी आर गेटिंग दैट इज अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ एंड at this position we are getting that is a secondary maxima। यहाँ पे हम लोगों को क्या मिला? सेकेंडरी मैक्सिमा मिला, क्योंकि ये जो लाइट है ये सीधा लाइट यहाँ पे P पॉइंट पे पहुंच रहा है। कौन सा? ये थर्ड पार्ट का। दो पार्ट में यहाँ पे एक दूसरे का इफेक्ट ये दोनों पॉइंट का कट हुआ, लेकिन यहाँ पे थर्ड पॉइंट है जिसके साथ कोई भी इफेक्ट कैंसिल करने वाला नहीं है वेव का पार्ट, इसलिए यहाँ पे हम लोगों को सेकेंडरी मैक्सिमा मिला। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो वो अच्छे से समझना है कि सेकेंडरी मैक्सिमा हम लोगों को कब मिला? 3 लैम्डा बाय 2। ठीक है,
तो अब देखो 3 λ/2 के बाद मैंने यदि यहाँ पे 5 λ/2 कंसिडर किया, अब ये जो डायग्राम है थोड़ा छोटा हो जाएगा, क्योंकि ये स्लिट उतना ही रखना है मुझे, ठीक है। तो स्लिट उतना ही रखना है और मुझे यहाँ पे इसके 5 इक्वल पार्ट्स करने हैं, क्योंकि अभी मुझे 5 λ/2 हर एक पार्ट कितना है λ/2 है। ओके, यहाँ पे 2 इक्वल पार्ट्स किए थे λ/2 तो इसलिए लैम्डा हुआ था। अब यहाँ पे 5 λ/2 मतलब ये 1 2 3 4 5 हुए। तो वेव हम लोगों को एक ऐसे वेव मिलेगा, देखो एक, ये दूसरा वेव मिला और ये तीसरा। अब यहाँ पे क्या होने वाला है वो देखो, तो समझने के लिए अब अच्छे से समझ लो। अब देखो इसका पार्ट और इसका पार्ट, यहाँ पे इन दोनों के बीच में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और ये एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल करेंगे, ठीक है। ये दोनों पार्ट, वैसे ही ये दोनों पार्ट्स है, याद रखना भी मैंने जो एरो किया है वो दोनों पार्ट्स, ये दोनों भी वहां पे एक दूसरे के साथ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे, क्योंकि λ/2 पाथ डिफरेंस है, इसलिए यहाँ पे इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, ठीक है। तो हम लोगों को वहां पे इन दोनों का इफेक्ट कैंसिल होगा। लेकिन ये जो 5th पार्ट है, ओके, इसके साथ इंटरफेरेंस करने के लिए कोई भी पार्ट नहीं है। दैट्स व्हाई द लाइट फ्रॉम द 5th पार्ट that will go to this particular position, ये यहाँ तक पहुंचने वाला है, and at the point P what we are getting that is a secondary maxima। यहाँ पे हम लोगों को सेकेंडरी मैक्सिमा मिलेगा। अब देखो पहले पोजीशन के लिए हम लोगों को λ/2 पाथ था, 3 λ/2 और 5 λ/2 दोनों पोजीशन पे हम लोगों को सेकेंडरी मैक्सिमा मिला है। समझ में आ रहा है? मतलब whenever the path difference is odd multiple of λ/2 we are getting that is a secondary maxima। हम लोगों को सेकेंडरी मैक्सिमा मिल रहा है। ओके, इवन मल्टीपल है तब हम लोगों को क्या मिल रहा था, यहाँ पे हम लोगों को मिल रहा था सेकेंडरी मिनिमा। ओके, ये याद रखो, सेकेंडरी मिनिमा कब मिल रहा था, व्हेन इट इज इवन मल्टीपल ऑफ λ/2, 2 λ/2 4 λ/2 ऐसे था। ये 2 λ/2 मतलब लैम्डा हुआ, 4 λ/2 मतलब 2 लैम्डा हुआ, ऐसे। तो यदि ऐसे है तो हम लोगों को क्या मिला था, ये सेकेंडरी मिनिमा मिला था। इफ इट इज ऑड मल्टीपल 3 5 इन दिस वे 7 λ/2 एंड सो ऑन, ये ऐसे है तो हम लोगों को क्या मिलने वाला है, सेकेंडरी मैक्सिमा मिलने वाला है। ओके, ये याद रखो, दिस इज नथिंग बट द पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो ये हम लोगों को अच्छे से समझ में आना चाहिए। गॉट इट? अब याद रखना है ये इवन पोजीशन है, मतलब हम लोगों को क्या लिखना है, इट इज 2n + 1 λ/2। अब n का कुछ भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखो, n = 1 सब्स्टिट्यूट किया मैंने। ओके, तो n = 1 सब्स्टिट्यूट किया तो 3 λ/2 पहला मिलने वाला है। n = 2 सब्स्टिट्यूट किया तो 5 λ/2। मतलब दिस कंडीशन, ये है पाथ डिफरेंस का कंडीशन। इफ पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू दिस, तो मुझे मिलने वाला है सेकेंडरी मैक्सिमा। इफ पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू दिस वी आर गेटिंग सेकेंडरी मिनिमा। तो ये सेकेंडरी मिनिमा का पाथ डिफरेंस का कंडीशन है, ये सेकेंडरी मैक्सिमा का पाथ डिफरेंस का कंडीशन है। ये दोनों कंडीशंस अच्छे से हम लोगों को याद रखनी है। गॉट इट? path difference is equal to n lambda, path difference is equal to 2n + 1 λ/2। we are getting in this way। तो ये दोनों कंडीशंस अच्छे से याद रखोगे आप लोग, तब हम लोगों को ये समझ में आएगा, ये फ्रॉडपर डायफ्रैक्शन। इसी को आगे हम लोगों को, अब देखो ये मैं थोड़ा क्लियर करता हूं। अब देखो जो अभी आप लोगों ने डिस्कस किया था वही है। दिस डिस्कशन कैन बी एक्सटेंडेड टू पॉइंट्स हैविंग द पाथ डिफरेंस 2 λ, 3 λ and n λ here, then we are getting, so it will be seen that all such a points secondary minima are formed. The same logic is applicable for the points on the other side of P0. Hence at the location of nth minima the path difference between the extreme rays is, path difference is equal to क्या लिखा है देखो, a sin theta। ठीक है, ये लिखा है a sin थीटा, मतलब क्या हुआ, पाथ डिफरेंस जो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, पाथ डिफरेंस दैट इज a sin थीटा दैट इज इक्वल टू +- n λ, वेयर n = 1 2 3, कुछ भी वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं। इफ इट इज
then it is called as a condition for secondary minima. secondary minima का a condition है, ये अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब देखो, if we assume the secondary maxima to be in between the respective minima, the path reference between the extreme rays at the secondary maxima is, अभी थोड़ी देर पहले मैंने path reference condition secondary maxima के लिए condition क्या बताया था, देखो secondary maxima है, यहाँ पे it is minima था, ठीक है, ये मिनिमा है कंडीशन, मिनिमा का कंडीशन ये हम लोगों ने लिया है, सेकेंडरी मैक्सिमा का कंडीशन क्या लिया था, ओके, इट इज n प्लस हाफ लैम्डा, इसी को आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो, इट इज 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2, ओके, आई कैन राइट इन दिस वे, n प्लस हाफ लिखो या 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2 लिखो, ओके, इट इज सेम, गॉट इट, 2n plus 1 lambda by 2, that is the condition for a sin theta is equal to 2n plus 1 lambda by 2, it is a condition for secondary maxima, secondary maxima का एक condition है, okay, now remember here it is the path difference, according to the path difference here it is we are getting the corresponding position, तो हम लोगों को secondary maxima और minima कैसे मिलता है ये डिस्कस करना है। So, thus, it is seen that the diffraction pattern coincides with the central maxima followed by the alternate secondary maxima and minima on either side. दोनों साइड में हम लोगों को secondary maxima और minima मिलेगा. Okay, that is the condition that we are consider there. तो हम लोगों को ये अच्छे से याद रखना है कि कैसे मिला। अब देखो, समझने के लिए मैं एक यहाँ पे ड्राइंग ड्रॉ करता हूँ। अब देखो, अब मैंने क्या किया, जो कंडीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा और मिनिमा था वो देखो, ये यहाँ पे जो अपना स्क्रीन है, ये यहाँ से हम लोगों का ये जो पोजीशन है ये स्लिट है, ओके, ये याद रखना। अब ये हो गया हम लोगों का सेंट्रल मैक्सिमा, ये पोजीशन है सेंटर का, ये ए पॉइंट था, अब ये बी पॉइंट है, ये याद रखना बी पॉइंट है, यहाँ से हम लोगों का लाइट सीधा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है, समझ में आ रहा है। अब देखो, ये पोजीशन है, मैक्सिमम इंटेंसिटी कैन बी ड्रॉन इन दिस वे, ये हम लोग यहाँ पे इसे, ये हो गया इंटेंसिटी का वेरिएशन, ओके, बाद में हम लोग डिस्कस करने वाले ही है। तो इंटेंसिटी का वेरिएशन हम लोगों को इस टाइप का पोजीशन में मिलने वाला है, मतलब ये जो P पॉइंट है, peak will be here it is, okay, this is called as a central maxima, ये है central maxima, ठीक है। अब देखो, जो बाकी के जो पॉइंट्स है, यहां से इसका जो इंटेंसिटी का वेरिएशन है ये ऐसे, मींस जो पीक दिख रहा है, ओके, दैट इज नथिंग बट द मैक्सिमा, मतलब ये यहाँ पे, ये देखो, भी थोड़ा कलर में चेंज करता हूं, ये जो आप लोगों को दिख रहा है ये जो टिप है, ओके, दीज आर नथिंग बट द सेकेंडरी मैक्सिमा, ये है सेकेंडरी मैक्सिमा, ओके, दोनों साइड में सेकेंडरी मैक्सिमा है, अंडरस्टूड दिस वन। अब इसी के बीच में यदि हम लोगों ने ए ऑब्जर्व किया, दीज आर द पॉइंट्स जहां पे इंटेंसिटी कम है, लेस देन दैट ऑफ दीज पॉइंट्स, ये मैक्सिमा है, यहाँ पे उसका मिनिमम है, तो दीज आर कॉल्ड एज अ सेकेंडरी मिनिमा, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी मिनिमा। तो सेंट्रल मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा एंड सेकेंडरी मिनिमा, ये याद रखना है,
समझ में आ रहा है? तो ये जो पीक्स है इसको हम लोग बोलेंगे दैट इज अ सेकेंडरी मैक्सिमा। ये हम लोगों को अच्छे से समझना है, ठीक है? तो इसको थोड़ा थोड़ा रिमूव किया। अब देखो ये हो गया फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, ठीक है? वैसे इस साइड में भी फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा है। ओके, रिमेंबर दिस वन। तो सेंट्रल मैक्सिमा कहां से कहां तक है? ये फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा यहां से यहां तक, इसके बीच में जो पोजीशन है इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। ये इतना पूरा सेंट्रल मैक्सिमा है एंड दिस इज नथिंग बट द इंटेंसिटी। ये पूरा उसका इंटेंसिटी है। गॉट इट? तो यहां से यहां तक जो भी डिस्टेंस है दैट इज नथिंग बट द सेंट्रल मैक्सिमा। अब हम लोगों को ये जो डिस्टेंस है वो निकालना है। ओके, मतलब अब देखो ये हम लोगों ने इसको यदि मैंने इसको पॉइंट पी कंसिडर किया तो ये जो पॉइंट है ये ऐसे हम लोग निकालेंगे, ए से ले लिया और ये बी से ले लिया, ठीक है? तो ये जो एंगल है यहाँ पे इसका जो एंगल का वेरिएशन है ये हम लोगों को यहाँ पे मिलने वाला है। अब देखो ये पॉइंट्स हम लोगों ने ले लिए। ओके, तो अब यहाँ पे इस सेंटर मैंने कंसिडर किया, ये है हम लोग अपना सेंटर दैट इज ओ पॉइंट, ठीक है? अब देखो ये है सेंट्रल मैक्सिमा का पोजीशन। अब एंगल क्या होने वाला है वो देखो, P0 टू P, यहां से यहां तक का हम लोगों को डिस्कस करना है, सिर्फ ये पार्ट, ठीक है? तो इसके लिए मुझे बाकी के सभी लाइंस हटाने हैं। ओके, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है कौन सा एंगल? दिस वन। ये जो एंगल है दिस इज नथिंग बट द थीटा एंड ये पाथ डिफरेंस रिप्रेजेंट करेगा। गॉट इट? दिस इज नथिंग बट द पाथ डिफरेंस। दो a sin थीटा वो इंडिकेट करेगा पाथ डिफरेंस दैट इज इक्वल टू n लैम्डा, या ये यदि कंडीशन हम लोगों ने कंसीडर किया तो n लैम्डा इफ इट इज फॉर द सेकेंडरी मिनिमा, नॉट रिलेटेड टू द फर्स्ट। सेकेंडरी मिनिमा के लिए, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा के लिए n इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग। ओके, यहाँ पे आएगा सेकंड सेकेंडरी मिनिमा, ये इस पोजीशन पे सेकंड सेकेंडरी मिनिमा आएगा, ठीक है? अब देखो ये सिर्फ जो अंदर का डायग्राम है वही सिर्फ मैं भी रखने वाला हूं, तो हम लोगों को मिलता क्या है वो देखो। तो हम लोगों को ये डायफ्रैक्शन पैटर्न मिल रहा है। अब इसमें हम लोगों को ये जो डिस्टेंस है P टू P0, okay, that is nothing but the position of first secondary minima and that can be calculated by using this formula. ओके, इस फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो ये जो डिस्टेंस है P0 टू दिस वन दैट इज नथिंग बट द D। ये यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है समझने के लिए याद रखना भी, ये डिस्टेंस कितना है? D है, ठीक है? अब मैंने कंसिडर किया था पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू a sin थीटा, ओके, दैट इज इक्वल टू n लैम्डा। गॉट इट? अब देखो ये sin थीटा का वैल्यू मुझे निकालना है। इस पर्टिकुलर पोजीशन से यदि हम लोग sin थीटा निकालते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को ये जो डिस्टेंस है O टू P डिस्टेंस दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू D। ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल है, तो या वी कैन एबल टू से दैट एज
थीटा इज वेरी स्मॉल, रिमेंबर हियर इट इज थीटा यदि स्मॉलर है, if theta is very small then we can able to consider that sin theta is approximately equal to tan theta. ओके तो हम लोगों को क्या मिलने वाला है, देखो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू व्हाट वी आर गेटिंग, दैट इज ये यदि डिस्टेंस x है तो मुझे मिला x अपॉन कैपिटल, ओके तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, दैट इज a इंटू साइन थीटा के जगह पे x अपॉन कैपिटल D, दैट इज इक्वल टू n लैम्डा. ओके तो n इज इक्वल टू, मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा के लिए n इज इक्वल टू 1, तो n इज इक्वल टू 1 यदि सब्स्टिट्यूट किया तो हम लोगों को मिला कितना, देखो ax अपॉन d इज इक्वल टू लैम्डा. तो हम लोगों को ये डिस्टेंस ओके तो हम लोगों को निकालना क्या है, देखो यदि मुझे ये x निकालना होता तो x इज इक्वल टू क्या मिलता, लैम्डा कैपिटल D अपॉन a. तो a जो डिस्टेंस मिला दिस इज नथिंग बट द दिस डिस्टेंस x, गॉट इट, एंड दैट इज नथिंग बट द, ये किसको क्या बोलेंगे हम लोग, पोजीशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा. ओके तो इधर का डिस्टेंस x है, उतना ही डिस्टेंस x इस साइड में आने वाला है, तो हम लोगों को विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा निकालना है, तो यही विड्थ हम लोगों को क्या मिलने वाला है, इसका 2x होने वाला है. ओके मतलब यदि मैंने w इज इक्वल टू कंसिडर किया, दैट इज विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, यदि मुझे ऐसे लिखना है तो ये कितना होने वाला है, w इज इक्वल टू 2x, मतलब 2 लैम्डा कैपिटल D अपॉन a. लैम्डा वेवलेंथ है, d क्या है, डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट, ये डिस्टेंस d है, याद रखना, ठीक है. नाउ एंड a क्या है, दिस इज नथिंग बट द स्लिट विड्थ, यहां से ab जो डिस्टेंस है दैट इज नथिंग बट द a, ये ab डिस्टेंस है, दैट इज a है, गॉट इट. अब थोड़ी देर पहले मैंने जैसे डायग्राम में कंसीडर किया था, यहाँ पे जो लेंस है उसका फोकल लेंथ f है, मींस as we can able to say that f is approximately equal to capital D, तो width of central maximum हम लोगों को कितना मिलने वाला है, 2 लैम्डा कैपिटल D, सॉरी कैपिटल D की जगह पे मुझे लिखना है f, तो लैम्डा f अपॉन a, दिस इज नथिंग बट द width of central maximum, तो ये विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम मिला, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो हर एक जगह पे हम लोग ये इसे कैलकुलेट कर सकते हैं. तो जनरलाइज यदि फॉर्मूला हम लोगों को करना है, यदि हम लोग फॉर्मूला जनरलाइज करते हैं, ओके तो अब देखो जनरलाइज फॉर्मूला क्या, मतलब हम लोगों को क्या मिलने वाला है, ये जनरलाइज फॉर्मूला मिला, ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट किया, by using this formula we can able to calculate the distance of any secondary minima there, ये any secondary minima का डिस्टेंस मैं यहां से निकाल सकता हूं, कौन से भी, गॉट इट, सिर्फ n की जगह पे वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, गॉट इट, मतलब फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, कौन सा भी वो यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. समझ में आ रहा है ये, तो यही हम लोगों को आगे जाके स्टडी करना है, गॉट इट. इतना पार्ट समझाएगा, देखो अब ये यदि समझा है तो वही मैंने जो लिखा है वो हम लोगों को ओके वही स्लाइड्स में आने वाला है आगे, अभी मैंने यहाँ पे करके दिखाया, ओके तो वही सिर्फ स्लाइड्स में आएगा, इसलिए मुझे ये क्लियर करना पड़ेगा ड्राइंग, तभी वो स्लाइड्स में आगे आने वाला है.
ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड्स में अभी देखो डिस्टेंस ऑफ द मिनिमा एंड मैक्सिमा फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट, जो हम लोगों ने अभी जो डिस्कस किया वही है। देखो a sin थीटा इज इक्वल टू a थीटा व्हेन sin थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा व्हेन इट इज थीटा इज वेरी स्मॉल, जैसे बताया था मैंने। ठीक है, तो अब आगे जाके क्या आने वाला है देखो, दैट इज इफ दिस हैपेंस, तो अभी देखो थीटा इज इक्वल टू y अपॉन डी, ये आप लोगों ने x कंसीडर करो या y, मैंने x लिखा था आप लोगों वहां पे, यहाँ पे y लिखा है। ओके, तो y अपॉन d there we are getting the distance. Now let nd, let y and d, that is nothing but and y and b, the distance of the nth dark and nth bright point from the central bright point. Thus the nth dark point on the either side of the central bright point. Therefore the path difference is a sin theta के जगह पे theta and d लिखा है डार्क पॉइंट के लिए। ओके, दैट इज इक्वल टू एन लैम्डा। ठीक है, इसी को सेकेंडरी मिनिमा बोला था। d is very very greater than that of a, that's why theta is very small, therefore sin theta is approximately equal to theta, ये हम लोगों ने कंडीशन लिया था। ओके, therefore नेक्स्ट पॉइंट क्या आने वाला देखो, a theta and d is equal to n lambda। ठीक है, मींस हम लोगों को मिला क्या देखो, theta and d is equal to n lambda upon a। ठीक है, मींस थीटा एंड डी कौन सा था, थीटा, ये याद रखना है, ये यहाँ पे थीटा एंड डी, थीटा मैंने यहाँ पे बताया था, ये जो है वैल्यू ये थीटा है। ओके, जो डायग्राम मैंने ऐसे सीधा खड़ा निकाला था समझने के लिए इसे। ठीक है, तो ये समझना है आप लोगों को। और ये थीटा एंड डी कितना वैल्यू आया था, इट इज x अपॉन कैपिटल डी, या यहाँ पे अभी हम लोगों के लिए इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए यहाँ पे इसको y कंसीडर किया है, तो हम लोगों को ये यहाँ पे y अपॉन कैपिटल डी आने वाला है। ठीक है, तो वो याद रखना है y अपॉन कैपिटल डी कैसे आएगा। आया y एंड d अपॉन कैपिटल डी, वी आर गेटिंग दिस पर्टिकुलर पोजीशन। ठीक है, तो थीटा एंड d इज इक्वल टू n लैम्डा अपॉन a, वी आर गेटिंग दिस कंडीशन देयर where w is equal to lambda capital D upon a, ये जो हम लोगों ने फ्रिंज विड्थ है इसी को विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा एक पोजीशन का बताया था। ओके, तो वही हम लोगों ने लिया है। गॉट इट? तो देखो, it is the distance between the consecutive bright fringes or consecutive dark fringes except the central, that is the 0th bright fringe. Similarly, at the nth bright point on the either side of the central bright point, theta and d is equal to, ये theta and d किसका कंडीशन आएगा, this is the condition for, ये किसके लिए कंडीशन है, ये याद रखना है, ये किसका कंडीशन है, that is for the NB लिखा है, मतलब क्या है, that is a bright secondary, इसी को secondary maxima हम लोग बोलते हैं। ओके, ये कंडीशन था सेकेंडरी मिनिमा के लिए। तो ये विड्थ W याद रखना है आप लोगों को, W इज इक्वल टू क्या कंडीशन है, W इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन ए, तो ये W इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन ए के जगह पे W सब्स्टिट्यूट किया है। तो विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले निकाला है, मैंने बताता था, वही सिर्फ हम लोगों को ये निकाला है, दैट इज अ 2 लैम्डा 1d प्लस लैम्डा 1d, दैट इज अ 2। इसको मैंने, इसी को मैंने क्या लिखा था, x प्लस x, इट इज 2x, ऐसे लिखा था, राइट है ना। तो ये कंडीशन आया, वही यहाँ पे सिर्फ इस पोजीशन पे लिखा है। ओके, तो लैम्डा 1d प्लस लैम्डा 1d, दैट इज अ 2w, दैट इज इक्वल टू विड्थ ऑफ c, दैट इंडिकेट करता है सेंट्रल ब्राइट बैंड, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज या बैंड आप लोग बोल सकते हो। ठीक है ना, as the lens is closer to the slit, जो वजह से मैंने बताया था, that is capital D is approximately equal to f, ये याद रखना है, in the above equation where the focal length of the converging lens, तो ये focal length कब, ये D के जगह पे हम लोग f लिख सकते हैं, मतलब वही आगे का फॉर्मूला क्या आने वाला है, WC width of central maximum is equal to 2 lambda capital D upon A, that is a 2 lambda f upon A, तो हम लोगों को वो टर्म मिलने वाला है। अंडरस्टूड दिस वन? तो अच्छे से आप लोगों को आज का पार्ट अच्छे से समझना है और घर पे जाके वो पढ़ना है। यदि आप लोगों को
स्क्रीनशॉट्स चाहिए तो मैं स्क्रीनशॉट्स के लिए फिर से शेयर करता हूं, तब आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ये पार्ट अच्छे से समझा होगा ऐसे मान लेते, और इसलिए मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। ठीक है, मतलब शेयरिंग स्टॉप करता हूँ। और ये पार्ट समझा ऐसे, और जिनको स्क्रीनशॉट लेना है, ओके, उनके लिए फिर से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, ये समझने के लिए फिर से जो फर्स्ट पेज था वो लाया मैंने। ओके, जहां पे डेफिनेशन आप लोगों को याद रखने, तो ये दोनों डेफिनेशन, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, तो दो डेफिनेशन याद रखना है, द फिनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द एज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द एंटायर रीजन ज्योमेट्रिकल शेडो इज कॉल्ड द डायफ्रैक्शन पैटर्न। कब ये जनरेट होता है? डायफ्रैक्शन साइज किसके ऊपर डिपेंड है? साइज ऑफ द ऑब्स्टैकल। ठीक है, ये कंपेरेबल होगा वेवलेंथ के, तभी हम लोगों को ये अच्छे से दिखता है। तो ये these are nothing but the two types of डायफ्रैक्शन पैटर्न्स। ये डायफ्रैक्शन पैटर्न के दो टाइप है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये वीडियो का स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। ओके, अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन आल्सो। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था फ्रंट अपर डायफ्रैक्शन। अब लोकेशन ऑफ मिनिमा एंड मैक्सिमा, ये तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये फुल पेज का। Now take the screenshot for this one also। जो पेजेस हैं एज अ नोट्स आप लोग इसको यूज कर सकते हो। Okay, take the screenshot for this one। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, लास्ट का पॉइंट हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, ये लास्ट पॉइंट था। ओके, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो इतने स्क्रीनशॉट्स आपको लेना है एंड राइट इट इज एज अ नोट्स देयर। आप लोग उसको एज अ नोट्स लिख सकते हो। ठीक है, थैंक यू।